ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ کا اعلیٰ سطح سیگمنٹ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اپنے خطاب میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم COP 28 کے موقع پر اعلیٰ سطح عمل درآمد گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ سری لنکا اور مالدیو کے صدور اور شام کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے کوچیئر بل گیٹس سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان پویلین میں ہونے والی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ دبئی میں ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت 100 سے زائد عالمی رہنما شریک۔ متحدہ عرب امارات کا ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی منصوبوں کے لیے $30 ارب فنڈ کے قیام کا اعلان۔ 2030 تک فنڈ میں $250 ارب کی سرمایہ کاری کا ہدف۔ پاکستان کا COP 28 میں $30 ارب کے فنڈز کے قیام کا خیر مقدم۔ فنڈز کی منصفانہ تقسیم سے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسکائی نیوز کو انٹرویو۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی دو ٹوک موقف۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن 2 ریاستی فارمولے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ جمعے کو صہیونی حملوں میں 178 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی۔ جنگ بندی کے خاتمے پر غزہ میں ضروری امداد، ایندھن اور ادویات لے جانے والے ٹرکوں کا بھی داخلہ بند۔ انسانی بحران مزید سنگین۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریاں۔ پارٹی قائد محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی صدارت میں مرکزی پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس۔ سینئر پارلیمنٹیرین بیگم نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے فاتح خوانی۔ پارٹی کے لیے ناقابل فراموش خدمات پر بیگم کلثوم نواز کو خراج عقیدت پیش۔ لاہور نیب کی گجرات ٹھیکوں میں مبینہ کک بیکس اور رشوت کی تحقیقات مکمل۔ پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس لاہور کی احتساب عدالت میں دائر۔ پرویز الہی اور مونس الہی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث پائے گئے۔ پرویز الہی اور مونس الہی نے گجرات کے لیے غیر قانونی طور پر 116 ترقیاتی اسکیمیں منظور کرائیں۔ نیب ریفرنس۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دیرینہ باہمی اور تاریخی برادرانہ تعلقات۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی متحدہ عرب امارات کے عوام اور حکومت کو 52ویں قومی دن پر مبارکباد۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر میں متحدہ عرب امارات کا ہمیشہ ساتھی رہے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی لازوال دوستی کو اجاگر کرنے کے لیے نیا گانا امارات اور پاکستان لانچ کر دیا گیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلا۔ 3776 باشندوں پر مشتمل مزید 612 خاندان اپنے وطن لوٹ گئے۔ افغانستان واپس جانے والے باشندوں کی مجموعی تعداد 4,02,312 ہو گئی۔ پاکستان نے افغان باشندوں کے کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک میں منتقل ہونے میں بھی مدد فراہم کی۔ افغان باشندوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پاکستان کے اقدامات کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی۔ سندھ کے تعلیمی اداروں کے 650 طلبہ کا پنو عاقل گرین کا دورہ۔ پاک فوج کے ساتھ خوشگوار دن گزارا۔ کھیلوں، گھڑ سواری اور معلوماتی سرگرمیوں میں بھی شرکت کی۔ طلبہ کے لیے روایتی میوزک کا پروگرام منعقد۔ طلبہ و طالبات نے پاک فوج کی ملک کے لیے خدمات کو بے حد سراہا۔
1971 की जंग की कहानी गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुजात लतीफ की जुबानी। मुजीबर रहमान समेत बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग ने प्रोपेगेंडा किया कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान में 30 लाख लोगों को कत्ल किया। जनरल मानेक शाह ने भी तस्लीम किया कि मशरक़ी पाकिस्तान में पाक आर्मी ने इस्मत दरी और कत्लेआम नहीं किया। कर्नल रिटायर्ड शुजात लतीफ। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर को शिकस्त। रियाद में खेले गए मैच में अल हिलाल ने अल नसर को यकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से हराया। अल हिलाल के सर्बियन खिलाड़ी एलेक्जेंडर मेट्रोविच ने 2 गोल किए। लीग में अल हिलाल अब तक नाकाबिले शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर 41 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर काबिज। कश्ती रानी की सबसे पुरानी बैनुल-अक़वामी ट्रॉफी अमेरिका कप। न्यूजीलैंड की टीम ने ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम 49 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। इटली की लूना रोसा प्राडा प्रेली की 11 पॉइंट्स के फर्क से दूसरी पोजीशन। इवेंट की तारीख में पहली मरतबा प्री लम्जी रिगाटा जद्दा के बहरा अहमर से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। शेर सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के आला सतह सेगमेंट से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म COP28 के मौके पर आला सतह अमल दरामद गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आज श्रीलंका और मालदीव के सदूर और शाम के वज़ीर आज़म से मुलाकातें मुतवक्के हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के लिए पाकिस्तान पवेलियन कायम किया गया है। वज़ीर आज़म पवेलियन में होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तरक्की पसीर मुल्कों में मौसमियाती मंसूबों के लिए $30 अरब फंड के क़याम का ऐलान किया है। दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए UAE के सदर मोहम्मद ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान कहते हैं कि 2030 तक इस फंड में मजमूई तौर पर $250 बिलियन की सरमायाकारी का हदफ रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंसानों की बका के लिए माहौल में तवाज़ुन नागुज़ीर है। हमें COP28 को गेम चेंजर बनाना होगा। रिपोर्ट करेंगे असद यार खान। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP28 के मौके पर आलमी मौसमियाती एक्शन समिट मौसमियाती चैलेंज से मिलकर नंबरदाज़मा होने की अहमियत की अक्कासी करती है, जिसका मकसद बाहमी राब्तों का फ़रोग़ और मुश्तरका हिकमत अमली से इस बड़े चैलेंज का मुकाबला करना है। इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हमारी जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। इंसानियत की बका के लिए हमें इस चैलेंज पर मौसर तरीके से काबू पाना होगा। उन्होंने दुनिया में अमन व हमआहंगी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से मिलकर निपटा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने क्लाइमेट जस्टिस को वक्त का तकाजा करार देते हुए कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए फंड्स की फराहमी आसान बनाई जाए। काबिल तजदीद ज़राए से तवानाई का असूल तरजीह होनी चाहिए। Third, climate justice is long overdue. Developing countries are being devastated by disasters they did not cause. Extortionate borrowing costs are blocking their climate action plans, and support is far too little, far too late. The global stocktake must commit to a surge in finance, including for adaptation and loss and damage.
برطانیہ کے کنگ چارلس سوئم نے موسمیاتی تبدیلی کو بڑا خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اہداف کے حصول میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہم سب مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کریں۔ Repeated cyclones batter vulnerable island nations like Vanuatu and Dominica. India, Bangladesh and Pakistan have been experiencing unprecedented floods, and East Africa is suffering a decades-long drought. Surely, real action is required to stem the growing toll of its most vulnerable victims. برازیل کے صدر اور دیگر مقررین نے کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مؤثر انفراسٹرکچر تعمیر کرنا ہوگا، فضا میں کاربن کے اخراج میں کمی لانا ہوگی، ماحول دوست توانائی بالخصوص قابل تجدید ذرائع سے توانائی کے حصول کو 2 گنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے موقع پر دبئی میں جمہوریہ اسٹونیا کے وزیر اعظم کاجا کالس سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کے لیے اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں غذائی عدم تحفظ سے نمٹنے اور زرعی پیداوار صلاحیت کو بڑھانے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسٹونیا کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری، اعلیٰ تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی فعالیت کو سراہتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے ٹھوس اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کاپ 28 میں $30 ارب کے فنڈز کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ فنڈز کی منصفانہ تقسیم سے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے علاقائی اور عالمی امور پر 2 ٹوک موقف کا اظہار کیا۔ تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کاپ 28 کے کامیاب انعقاد پر UAE کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا عالمی سطح پر بہت بڑا چیلنج ہے اور اس حوالے سے UAE کی طرف سے اربوں ڈالر کا فنڈ خوش آئند ہے۔ اس سے مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ Announcement by the President of UAE of this grand $30 billion commitment, which we do understand is not according to the climate needs and requirements, but it's a very ambitious start. It's a very an initiation which would be remembered in history when all these fundings which would be committed, we hope in future. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ پاکستان غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ Pakistan, along with all the regional partners, we are in support of this idea of a 2-state solution. There has to be a Palestinian government. That is the eventual solution, and we all should push and realize and work towards that outcome. If it does not stop here, it can engulf throughout the region, maybe Egypt, Syria, Jordan, and probably there won't be any limit to that. پاکستان میں غیر ملکیوں کے قیام کے حوالے سے سوال کے جواب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ If you have such a huge undocumented population amongst the local population, it creates social challenges, it creates political challenges. Even it has now implications for the kind of terrorism we are facing. So it was a prime duty upon the National Government of Pakistan to respond to those challenges and try to resolve and give solutions which would be primarily better for our own population, and in a way it would help out and rationalize the future interaction of the undocumented Afghan nationals also. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی 2 ٹوک موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कॉप कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें लॉस एंड डैमेज फंड के लिए मुज़ाकरात और पाकिस्तान की काविशों के बारे में ब्रीफ किया गया। उन्हें लिविंग इंडस इनिशिएटिव के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के खतरात से मुतालिक आगाही के लिए इक़दामात को सराहा। मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल ने गजा के साथ साथ शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाकों और लबनानी सरहद पर भी हमले शुरू कर दिए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमे को सेहूनी हमलों में 178 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। सेहूनी फोर्सेस ने शिमाली वस्ती और जनूबी गजा में रिहायशी इमारतों और पनागुज़ीन कैंपों और गुंजान आबाद इलाकों समेत 200 से ज़्यादा मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल ने शिमाली गजा पर कब्जे की भी कोशिशें शुरू कर दी। इसराइल का कहना है कि अरब ममालिक को गजा में बफर जोन बनाने के मंसूबे से आगाह कर दिया है। मगरबी किनारे में भी सेहूनी दहशतगर्दी जारी है। दूसरी जानिब इसराइल ने जंग का दायरा कार वसी करते हुए लेबनानी सरहदी इलाके को भी निशाना बनाया। इसराइली बमबारी में लेबनानी खातून और उसका बेटा शहीद हो गया। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के 5 अहदाफ पर हमलों की तस्दीक कर दी है। शाम के सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक इसराइल ने दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके पर मिसाइली हमले किए। शामी फोर्सेस ने इन हमलों को नाकाम बनाते हुए बेशतर मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में इसराइली हमले दोबारा शुरू होने पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है फ़रीक़ैन लड़ाई में वक्फे की तजदीद कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीन में दोबारा हमले शुरू होने और गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी फ़लस्तीन की सूरत हाल पर फौरी फैसला कुन इक़दाम करे। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि वह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। इक़दाम से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को ख़त्म करने और ख़ित्ते को मुस्तहकम करने में मदद मिल सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें बहरान के ख़ात्मे के लिए सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुछ गजा में हो रहा है वो काबिल कबूल नहीं। गुज़श्ता चंद बरसों से इसराइल फ़लस्तीनी सरज़मीन पर मुनज़्ज़म तरीके से काबिज़ हो गया है। अगर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं है तो मैड्रिड यकतरफ़ा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार नहीं करता। वाज़ेह रहे कि स्पेन की पार्लियामेंट ने 2014 में एक करारदाद के हक़ में वोट दिया था जिसमें फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का भी मुतालबा किया गया था। लाहौर नैब ने गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल करके परवेज़ इलाही और मूनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ से ज़ायद का रेफरेंस लाहौर की अदालत में दायर कर दिया है। परवेज़ इलाही समेत दीगर 14 मुल्ज़मान के खिलाफ दायर रेफरेंस में कहा गया है कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया और किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़मान ने मिलकर रिश्वत और किकबैक्स की मद में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज़ायद का मालियाती फ़ायदा लिया। नैब के मुताबिक मुल्ज़मान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं, लिहाजा एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुल्ज़मान को सज़ा दे। नई हल्काबंदियों के मुताबिक चारों सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों की तादाद क्या है, देखते हैं इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। इलेक्शन 2024 के लिए चारों सूबाई असम्बलियों में 749 अरकान सूबाई असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। इन 749 अवामी नुमाइंदों में 132 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर बराजमान होकर अवाम की नुमाइंदगी करेंगी, जबकि 24 नशिस्तें अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तस की गई हैं। इन नशिस्तों की तकसीम सूबावार देखते हैं। अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो जनरल नशिस्तें 297, खवातीन की नशिस्तें 66 और अक़लियती नशिस्तें 8 बनती हैं, जबकि मजमूई नशिस्तों की तादाद 371 है। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तें हैं 130, खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं 29, जबकि अक़लियतियों के लिए मुख्तस नशिस्तें 9 हैं और मजमूई नशिस्तों की तादाद 168 बनती है। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तें हैं 115, खवातीन की नशिस्तें 26, जबकि अक़लियतियों के लिए मुख्तस नशिस्तों की तादाद 4 है।
जबकि मजमूई तादाद 145 है। इसी तरह बलूचिस्तान असेंबली की बात की जाए तो मंजरनामा कुछ यूं बनता है। बलूचिस्तान में जनरल नशिस्तों की तादाद 51 है, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 11 और अक़लियतियों के लिए मुख्तस नशिस्तों की तादाद 3 है, जबकि मजमूई तादाद की बात की जाए तो वो 65 बनती है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास जारी है। इजलास की सदारत पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड के इस इजलास में सरगोदा डिवीजन में उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में फैसला किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड 19 दिसंबर तक मुल्क भर में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने से मुतालिक भी फैसला करेगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पेशावर में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उमर अयूब PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI पंजाब की सदर, जबकि हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध के सदर मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर मुंतखब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नामों का बाकायदा ऐलान किया। नियाजुल्लाह नियाजी ने बताया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया, ताहम इंतखाबी अमल पर सवालात उठने लगे। PTI कारकुनान और अहदेदारों ने भी इंतखाबी अमल के तरीक़ाकार पर हैरानगी का इज़हार किया है। वोट डाले बगैर इंतखाबात हो गए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है बल्कि फेसबुक इलेक्शन है। यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होगी, फेसबुक से राय ली जाएगी कि किसको सदर मुंतखब किया जाए। उसमें पता नहीं क्या होगा, मगर ये सरासर इलेक्शन कमीशन के आंखों में धूल झोंकने की मुतरादिफ है। यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होने जा रही, सिर्फ लोगों को बुलाया है और ये लोग फेसबुक पे कोई पोलिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है ना वो अनाउंस करेंगे कि फला जो है ना वो सदर बन गया। इकराम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम और हुकूमत को उनके 52वें कौमी दिन पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि खुशी है कि इस तारीखी मौके पर COP28 के सिलसिले में दुबई में मौजूद हूँ। पाकिस्तान अपने अमाराती भाइयों के बेमिसाल तरक्की पर फ़ख्र करता है। उन्होंने कहा कि हम मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की बसीरत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की क़यादत में UAE को तिजारत, सियाहत और टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बनाने में किरदार को भी सराहते हैं। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात का हमेशा साथी रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के देरीना बाहमी और तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की लाजवाल दोस्ती को उजागर करने के लिए नया गाना अमारात और पाकिस्तान भी जारी कर दिया गया। अल इमारात बलद अल इब्दा वल जमाल तरफ़रफ़ अलैहा अल आलाम बिकुल फ़ख्र रम्ज़ लित्ततव्वुर वत्तक़द्दुम अल मसाली वतनना अल हबीब यहमीहु अल्लाह फ़ी कुल्ल साअ व लहज़ा।
और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 1 दिसंबर को 3,776 अफगान बाशिंदों पर मुश्तमिल मजीद 612 खानदान अपने वतन वापस लौट गए। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों में 1,232 मर्द, 1,178 खातीन और 1,366 बच्चे शामिल थे। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के खौफ से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। 1 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,02,312 हो गई। पाकिस्तान ने मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान ने बगैर किसी जोर और ज़बरदस्ती के अफगान बाशिंदों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और उनको दीगर ममालिक में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 295 अफगान बाशिंदों को कनाडा जाने में मदद की, जहाँ उन्हें 33 मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश भी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान से सैकड़ों अफगान बाशिंदों को बरतानिया मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के अफगान बाशिंदों की हिफाजत और सलामती के लिए इक़दामात को खूब पजीराई हासिल हुई। हुकूमत पाकिस्तान कनाडा में मुकीम अफगान बाशिंदों को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में अफगान बाशिंदों की आबादकारी के लिए पाकिस्तान की जारी हिमायत और काविशें उसकी गैरसिगाली और हमदर्दी का मुंह बोलता सबूत हैं। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया और बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को मशकों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा, आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया और बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया है, क्या अपडेट्स हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया और बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया है और बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया है। कोर की जानिब से मशकों के इनेकाद का बुनियादी मकसद रवायती पेशा वराना तैयारियों की सलाहियत को जांचना है और इसी हवाले से आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया है और बहावलपुर कोर की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इन मशकों का मुशाहिदा भी किया है। जबकि इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इन मशकों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया है और बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ को मशकों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा, आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली का दौरा किया और बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया है, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामियावाली में बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा करने के लिए दस्तों का दौरा किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फील्ड एक्सरसाइज के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई, जिसका मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए दरकार मुख्तलिफ दर्जात और मैदानी जंग के तरीक़ाकार पर पेशा वाराना महारत को बढ़ाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुख्तलिफ अनासर के मजबूत फायर और जंगी मशकों का मुआयदा किया और इसके अलावा जो आर्मर, मैकनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और कॉम्बैट एविएशन की तरफ से मुस्तद और मावन है, इसका मुशाहिदा किया और बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले जो जवान हैं उनसे बातचीत भी की और इसके साथ ही उन्हें तरबियती मेयार और ऑपरेशनल तैयारियों और अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसलों को भी सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वो हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करें, ये कहना था उनका जवानों से, और कहा कि हम चैलेंजों से बखूबी वाकिफ हैं और कौम की हमायत से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मजलूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाक को हर किस्म की मुश्किलात के खिलाफ पाकिस्तान के इलाकाई और सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह
تیار ہے اور پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے خطرات کے خلاف دفاع پر مرکوز ہے اور قوم کی حمایت سے مسلح فوج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دے گی. اور اس کے ساتھ اس موقع پر جو ہے چیف آف آرمی صاحب وہاں پہنچے تو کور کمانڈر بہادر نے ان کا استقبال کیا. جی بہت شکریہ عمران منصب خان آپ کا تفصیلاً ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں گے کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی نوجوان آبادی اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. بدقسمتی سے نوجوانوں میں غلط بیانی کے تحت مایوسی پیدا کی گئی. گورنر ہاؤس لاہور میں لمس کے طلبہ کے وفد سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ تعلیم کا سب سے اہم مقصد اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہے. ایک مخلوط معاشرے میں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم رہ سکے. گورنر پنجاب نے کہا کہ قانون اور آئین کی بالادستی سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. ہمارے ملک میں منفی چیزیں کم اور مثبت چیزیں زیادہ ہیں. ایدھی اور اخوت جیسے اداروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں. گورنر پنجاب نے طلبہ کو گورنر ہاؤس کی تاریخی اہمیت سے بھی آگاہ کیا. بعد ازاں طلبہ کو تاریخی گورنر ہاؤس لاہور کا دورہ بھی کرایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الل صبح ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا اچانک دورہ کیا اور 2 گھنٹے تک ہسپتال کے اپ گریڈیشن کے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے 31 جنوری تک اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی ہدایت کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی فرش پر لگائی گئی ٹائلز کی کوالٹی دیکھ کر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یکساں معیار کی ٹائلز لگانے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے دن رات محنت کی جا رہی ہے. 100 سے زائد ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے. پوری کوشش ہے کہ ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنا کر جائیں. انہوں نے کہا کہ اپ گریڈیشن کے کام میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور کوالٹی ورک پر کسی قسم کا سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا. سندھ کے تعلیمی اداروں کے طلباء نے پنو عاقل گرین کا دورہ کیا. مختلف کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات نے پاک آرمی کے ساتھ یادگار اور ایک مصروف دن گزارا. پاک آرمی کے ساتھ دن گزارنے کا مقصد پاکستان آرمی کی ملک کے لیے خدمات سے آگاہی حاصل کرنا تھا. لاڑکانہ ڈویژن سکھر سے 650 طلباء نے گیریجن کا دورہ کیا. طلباء کھیلوں، گھڑ سواری اور معلوماتی سرگرمیوں میں مصروف رہے. پاک فوج کے زیر اہتمام طلباء اور طالبات کے لیے روایتی میوزک کا پروگرام بھی منعقد کرایا گیا. طلباء اور طالبات نے پاک فوج کی ملک کے لیے خدمات کو بے حد سراہا. اور قومی احتساب بیورو نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 8 ملزموں کو ریفرنس میں نامزد کیا گیا ہے. دیگر ملزموں میں بشرا بی بی، فرح گوگی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ضیاء المصطفیٰ نصیر شامل ہیں. 1971 کی کہانی غازیوں کی زبانی. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں دشت و خون کی ہولی کھیلنے والے بھارتی اور ان کے اعلی کار مکتی باہنی کے دہشت گردوں نے مشرقی پاکستان میں انسانی حقوق کی ایسی خلاف ورزیاں کی جو منظر عام پر نہ آ سکیں. اس حوالے سے پاکستان آرمی کے غازی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ شجاعت لطیف نے 1971 کے مشرقی پاکستان میں حالات اور آپ بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے 21 اپریل 1968 میں کمیشن حاصل کیا. 71 میں ہی ہمیں آرڈرز مل گئے کہ ہم نے موو کرنا ہے ایسٹ پاکستان. جسور ہمارا ڈیسٹینیشن تھا. آئی تھنک بائی 16th we were in position. ابھی we were covering 40 miles area. ابھی مجبوراً ہمیں بیچ میں ہیوج گیپ چھوڑنے پڑے. اتنے بڑے ایریے کا ڈیفینس کرنا بہت مشکل ہو گیا. ایک لوکل پاپولیشن ہمارے پاس ہماری فیور میں نہیں. ہمارے سامنے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پیچھے بھی. ہم ہر طرف سے دشمن سے گھیرے. ہمارے اگینسٹ 5 لاکھ ہندو افواج کے آدمی تھے، ہندو فوجی تھے جو فلی اکوپڈ ود لیٹسٹ اکوپمنٹ. ان کی جہاز تھے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے 3 ملین آدمیوں کو یہ مجیب الرحمان نے پروپیگنڈا کیا کہ کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا ان کے ساتھ تھا. ہمارے پاس جو تھے ان کو ودن 1 month مارچ میں وہاں سے نکال دیا گیا تھا. جنرل مالک شاہ نے خود کہا، یہ میں نے ان کا خود انٹرویو سنا ہوا ہے، کہ یہ پاکستان آرمی نے کوئی بندہ نہیں مارے، یہ سارا ان کی آرمی نے یہ سارا کام کیا. جینوسائیڈ بھی کیا بہاریوں کا، اور ساتھ اس میں کی انہوں نے خواتین کی بے تحاشا مدعا ہم پہ ڈال دی. مدعا انہوں نے ہم پہ ڈال دیا. یہ مالک شاہ خود کہہ رہے ہیں.
इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की हालत इज़हार के उन्वान से मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल सुहेल महमूद ने मुबाहिसे से खिताब में कहा कि हालिया बरसों में भारत में अक़लियतों के खिलाफ इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च पेरिस के प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों की भारतीय लोकसभा में तादाद कम हुई। तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में अक़लियतों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रॉ की मगरबी ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बेनकाब होने लगी और पहली बार शुमाली अमेरिका में अपने ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका ने खालिस्तान के हामी कारकुनान के खिलाफ कत्ल की मुहिम में रॉ की मुबैना शमूलियत से मुतालिक संजीदगी से नोटिस ले लिया है। खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने दुनिया भर खासतौर पर मगरबी ममालिक में अपने नेटवर्क का क़याम 2008 के बाद ज़्यादा तेज़ी से शुरू किया। इसका मकसद दुनिया भर में भारत मुखालिफ किसी भी तहरीक के खिलाफ कार्रवाई करना था। रॉ ने सिखों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और मगरबी ममालिक में मुकीम सिखों के कत्ल का भी मंसूबा बनाया। सबसे पहले कनाडा ने रॉ की इस कार्रवाई को आलमी सतह पर बेनकाब किया, लेकिन भारत ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भी रॉ के एजेंटों का नेटवर्क बेनकाब कर दिया है। अमेरिका ने भारतीय सिफारत खाने और कंसल खाने से रॉ के एजेंटों को निकल जाने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी हुकाम की जानिब से निकाले गए एहलकार सैन फ्रांसिस्को में रॉ स्टेशन के सरबराह और लंदन में रॉ ऑपरेशंस के सेकंड इन कमांड थे। सैन फ्रांसिस्को में रॉ के अफसर की बेदखली के साथ इस खदशे का इजहार किया गया है कि अगर रॉ ने मगरिब में जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो अमरीका भारत के साथ ताउन नहीं करेगा। रॉ ने खालिस्तान तहरीक के कई सरगर्म कारकुन को कत्ल करने की साजिश की है। अमेरिका ने रॉ के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए नखल गुप्ता को गिरफ्तार करते अदालत में पेश किया। इसको अमेरिका में रॉ ने सिख अमरीकी शहरी को कत्ल करवाने के लिए इस्तेमाल किया था। रॉ की कार्रवाइयाँ आलमी सतह पर खासतौर पर इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बनी जब सितंबर 2023 में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जून में वैनकूवर के नवाही इलाके में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलविस थे। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल में रॉ को मुरत इल्ज़ाम ठहराया और भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद रॉ का आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम होने का तासुर सामने आया। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रॉ के साबिक चीफ अफसर सुमित कुमार गोयल की निशानदही भी की और तहरीक खालिस्तान के हामी सिखों के खिलाफ बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता हफ्ते आलमी सतह पर जासूसी और मावराए अदालत कत्ल समेत हिंदुस्तान की खुफिया कार्रवाइयों के खतरनाक फैलाव पर तशवीश का इजहार किया था और इन कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार देते हुए मज़म्मत की थी। आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग, बच्चियों की जबरी शादी, चाइल्ड लेबर और जिनसी इस्तेहसाल जैसे संगीन जराइम का खात्मा और गरीबों, नस्ली ग्रुपों, अक़लियतों और तारिकीन वतन, नादार ख़वातीन के साथ नारवा सलूक के खिलाफ इजहार हमदर्दी करना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़ायद लोग आज के दौर में भी गुलामी का शिकार हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 15 करोड़ से ज़ायद बच्चे भी जबरी मुशक्क़त पर मजबूर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक बच्चा जबरी मुशक्क़त का शिकार है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजियों की तरफ से इलाके में जारी दहशतगर्दी के राज की शदीद मज़म्मत की है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज गुलामी के खात्मे के आलमी दिन के सिलसिले में जारी एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारत को मकबूजा इलाके में जदीद दौर की गुलामी के खात्मे पर मजबूर करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय फौजियों को काले कवानीन के तहत बेलगाम इख्तियारात हासिल हैं। वो निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ संगीन जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं जो भारतीय गुलामी के तोक को तोड़ने और अपने हक के खुदरातित के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के मुनसिफाना कॉज की भरपूर हिमायत करे और तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक हल कराने में अपना मौसर किरदार अदा करे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से रुकन कांग्रेस ब्रेट चार्टर ने मुलाकात की है। रुकन कांग्रेस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। मसूद खान ने रुकन कांग्रेस को पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मरहलावार वापसी के हवाले से ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया।
मौसमियाती शिद्दत के बढ़ते चैलेंज ने सबसे ज़्यादा ज़राई शोबे को मुतासर किया है। शोबे को पहुँचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसानात से मुल्की मईशत भी मुतासर हुई। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे शिराज दुरानी। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़रई और सनती शोबों को मुतासर किया है। ख़ुसूसन पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुसलसल इस चैलेंज से नबुर्द आज़मा है। मुल्क की मजमूई पैदावार में 23% के हामिल ज़रई शोबे और इससे बराह रास्त मुंसलिक काश्तकारों ने इस दौरान अरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया। मौसमियाती शिद्दत के नतीजे में 2010 में दरियाए सिंध में आने वाले सैलाब ने मुल्क की मईशत की चूल्हें हिला दी। केपी, जनूबी पंजाब और सिंध के 60 से जायद अजला में लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर सैलाबी आफत की नजर हुई थी। सिलसिला यहाँ तक नहीं थमा, बल्कि अब तो हर साल ही जुलाई, अगस्त और सितंबर बनकर किसानों की माली हालत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता साल ग्लेशियर के तेजी से पिघलने, गैर मामूली बारिशों और नालों में तुग़यानी के बाद बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में 1700 हलाकतों के साथ साथ लाखों एकड़ रकबे पर ज़ेरे काश्त सबसे बड़ी नकद फसल कपास समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। बारिशों का और सैलाबों का जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया है। अचानक से बाज़ ऐसे इलाकों में जहाँ पे पहले बारिशें नहीं होती थी, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, वो ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और फसलें जो हैं वो खड़ी खड़ी तबाह हो जाती हैं। 3 माह कबल ही दरिया सतलुज जो गुज़श्ता 5 दहाइयों से खुश्क हालत में पड़ा था, उसमें भारत की जानिब से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर के अजला को मुतासर किया था। इन नामसाइद हालात की वजह से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है। मौसमियाती शिद्दत के तदारुक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अमल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका आलमी इदारे पाकिस्तान की माली मुआवनत का सिलसिला जारी रखें। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। बलूचिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाली कुदरती आफात के बायस सूबे का तकरीबन 70% हिस्सा शदीद मुतासर हुआ है। इस हवाले से रवां बरस महकमा जंगलात ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 52 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से सरफराज शेख की रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस माहौलियाती खतरात के तनाजुर में बलूचिस्तान गुज़श्ता साल सैलाब की तबाहकारियों के बायस दूर दराज और पसमानदा इलाकों में वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान से दो चार हुआ। शदीद सैलाबी सूरत हाल से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कच्ची आबादियों, तैयार फसलों, बागात, माल मवेशियों, मवासलाती निज़ाम, रोजगार और अमलाक को नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। महकमा जंगलात बलूचिस्तान ने मौसमियाती तग़य्युरात से निमटने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को कायम रखने के इक़दामात का आगाज़ कर रखा है। रवां बरस मुख्तलिफ अजला में 52 लाख से ज़ायद पौधे लगाने का अहदाफ मुकम्मल कर लिया गया। एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ ज़मींदारों में शऊर उजागर किया गया है कि वो ज़रई ज़मीनों के इर्द गिर्द दरख्त लगाकर माहौल और फसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमने तकरीबन 2 लाख के करीब पौधे डिपार्टमेंट ने लगाए हैं और 7 लाख पौधे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जनरल पब्लिक को, फार्मर्स को, आर्म फोर्सेस को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किए हैं। हमारा मकसद सिर्फ पौधा लगाना या दरख्त लगाना नहीं है, बल्कि छोटे से पौधे को दरख्त बनाना हमारा मकसद होता है। ज़रूरत है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी अपना इनफरादी किरदार अदा करे। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। गुज़श्ता 3 रोज़ से होने वाली धुंध और स्मोक की वजह से खानेवाल में जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, वहीं लोगों को दफातर और स्कूल कॉलेजेस जाने में भी दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जान लेंगे कुलसुम बशीर की रिपोर्ट में। मौसम सरमा के आगाज ही से गुज़श्ता कई रोज से धुंध और स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों के धुएं के बायस एक तरफ तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, क्योंकि धुंध और स्मोक में हादसा से बचने के लिए मोटरवेज बंद कर दी जाती हैं, तो दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लोग गले, सांस, फेफड़े और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक में हैवी कार्बन की वजह से दमे और नमूनिया की बीमारियां बहुत कॉमन हो रही हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। नीज़ ब्रा इसकी वजह से आँखों में चुभन, तकलीफ़ और पानी का एहसास आम ख़ास तौर पे बच्चों को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। एहतियात सिर्फ ये है कि मास्क लगाएं और आँखों पे चश्मा लगाएं और गैर ज़रूरी तौर पर स्मोक में बाहर सफ़र ना करें। मोटरसाइकिल पर ख़ास तौर पे सफ़र करने से परहेज़ करें। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ अवाम को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। कुलसुम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल।
आज दुनिया भर में कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आलात के बारे में शऊर उजागर करना और इस सहूलत से महरूम तबकात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज तक रसाई को बढ़ाना है। इंटरनेट तकनीकी तौर पर कंप्यूटर का ऐसा जाल है जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। कंप्यूटर तालीम, रोज़मर्रा के मामलात और दफ्तरी उमूर में मदद फराहम करने के अलावा नौजवान तबके को फ्रीलांसिंग के जरिए काबिल इज्जत रोज़गार कमाने के काबिल भी बना रहा है। पंजाब भर में गंदम के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हसूल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम और काश्तकारों को तरबियत की फराहमी के नतीजे में ज़िला शेखुपुरा की तहसील सफ्तराबाद में गंदम की काश्त में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज हुआ था और आज उसका आखिरी रोज़ है। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। इख्तितामी दुआ के लिए सैकड़ों भारतीय यात्री राहदारी से दरबार पहुंच गए हैं। बरतानिया, कनाडा और मलेशिया से आए सिख यात्री दरबार में इबादत और मजहबी रसूमात में मसरूफ़ हैं। बरास्ता वाहगा आए 2500 से ज़ायद यात्रियों ने लंगर हॉल में नाश्ता भी किया। बाकी खबरें आप जान सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट स्लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -6, कालाम, कल्लात -3, गोपस, करदू -2 और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।